Therefore, we engage everyone in the PSC sessions or all academic sessions for their mentorship. So for today's session, it is on UPSC examination and preparation. As you all know, I would like to now hand over the stage to the Vice President Vishnu Bishnoi for the introduction and welcome of our esteemed guest. Thank you, Dheeraj bhaiya. Am I audible? Yeah, you are. So, good evening, hello everyone, namaskar, Kamagani. My name is Vishnu Bishnoi. As I am serving as the Vice President of Pakistan Leaders Association. So, I warmly welcome to not only from my side but also from the whole team of RLA to each and everyone who joined us today for this session. So, सबसे पहले राजेंद्र सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें दिया और आप यहाँ आए तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा we were expecting that the students from the Delhi University or Jawaharlal Nehru University will be here, but as I can see the students from across the universities, students from Rajasthan University, Punjab, Haryana, so yeah, it's in a very big thing. So सभी का स्वागत है और I think हमने जिस पर्पस से सेशन को रखा है, I think after the sessions your query will be received all related to the you can say the UPSC related things. So now I think we can have an introduction with Rajendra Bishnoi sir. So now I am in trouble like कहाँ से शुरू किया जाए. So दिल्ली में एक जगह है सिविल लाइंस. So मैं एक ऐसे किसी शख्स से मिलता हूँ वहाँ पे जो मुझे पता चलता है कि इस बार मेंस एग्जामिनेशन ले. तो मुझे पता चलता है कि इस बार वो मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं और लाइक जब मैंने उनसे बात की तो मुझे वो नेचर में बहुत हम्बल. एक उसके बाद में टाइम था कि जब मैं उसी लाइक आधे एक साल के बाद मैं वापस उस शख्स से मिलता हूँ और तब वो शख्स 2023 161 रैंक ऑल इंडिया 161 रैंक के साथ. तो जब मैंने आफ्टर द सिलेक्शंस लाइक मैंने बात की तो तब इतनी हम्बलनेस से उन्होंने बात की कि वो आईपीएस नहीं थे और आज आईपीएस. तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी after the getting selected in the UPSC examinations और आप उतनी ग्राउंड पे रह के उतनी हम्बलनेस के साथ बात कर. तो राजेंद्र बिश्नोई सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएलए में. अगर आपकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप एक छोटे से एक नोखा जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है. स्कूलिंग एजुकेशन आपने वहाँ से पूरी की. उसके बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय जाकिर हुसैन कॉलेज में आप अंडर ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन किया. इसके बाद आप यहीं से रामजस्त कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट और इसके बाद Am I audible now? It's clear? Better? Yes, sir. Yeah, okay. So, let's go. So, first of all, welcome all of you and very good evening. So, the certain fundamentals we will talk about the UPSC preparation. So, first principle that I always follow, apart from the approach and syllabus, you all know. And hopefully, I believe that you all know. So, first principle, write it down. If you want to keep it in the mind. The first principle is to make sure, I will talk about the mains first, then prelims. So in mains, the first principle is to score 500 plus marks in 4 papers, including 4 papers. It's essay, ethics and optional. These 4 papers, you should be scoring 500 plus and you will be in the list. So the first principle is to essay, ethics and optional. These 4 papers you should be scoring 500 marks, 500 plus. Anything 500 plus you will be in the list. In like
in my last attempt which I got selected, I scored around 520. I got selected, and in the second attempt where I gave the interview but I missed the list, that's where I scored less than 500. So 500 is the mark. So make sure that essay, ethics and optional, what we all do is we tend to focus more on GS1, GS2, GS3, all these subjects, dynamic, कितना पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, but the crux lies there in essay, ethics and optional. It's called EEO. So make sure that in these 4 papers you are scoring 500 plus and plan accordingly. So rather than we focus on the prelims, history, everything that will come, but still first if you have times you are in college or you are starting your preparation, you can give time to your fundamentals. So make sure that essay, optional and ethics paper you are focusing upon. And now apart from for the mains, now we will go by GS1, GS2, GS3, GS4 and specific sources and how to go about it and what to do. So make sure that any topic you are studying, following the UPSC syllabus, make sure any topic you are studying, you are having the PYQ of that particular topic on your table. Specific, like if you are studying Indian society, then the last 10 years PYQ from UPSC that should be on your table, and with the topic, if you are picking up single topics, then make sure that you are going through those PYQs and trying to solve them or read the model answer related to them. So make sure that each topic you need, irrespective of anything, pre, mains, he said, whatever you are doing. So whatever you are doing, make sure that you are following that PYQ. ये 2 प्रिंसिपल जो मैंने बताया कि एक 500 नंबर की और एक अपने PYQ के, ये दोनों चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और PYQ आपके हमेशा टेबल पे होने चाहिए. प्री और मेंस बोथ दोनों के मार्केट में मिलते हैं, दोनों टॉपिक वाइज. आई होप ऑल यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है. So let's do it. Yes, sir. Hindi in between there will be little English, but I prefer to. Yes, sir. Okay, good. So 500 नंबर का ध्यान, उन अपने 4 पेपर में 500 नंबर का ध्यान रखना है और उसके बाद में जो भी टॉपिक पढ़ो आप, अभी टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करें. आप टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके टॉपिक के हिसाब से आपके टेबल पे होने चाहिए. आपने जो टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे सोसाइटी कंप्लीट किया आपने 15 दिन लगे, तो आपको ये 5 अगले 1 हफ्ता आपको उसको देना है कि सोसाइटी के मेंस के सारे क्वेश्चन हैं वो सारे एक बार गो थ्रू करें, एक बार मॉडल आंसर पढ़ लें, एक बार सोल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत लिखने की. ये 2 चीज प्रिंसिपल्स होगी. अब बात करते हैं टॉपिक वाइज कि सब्जेक्ट वाइज. GS1 फर्स्ट ऑफ ऑल, GS1 में मेजर ज्यादा लोग सुन रहे हो तब तक चलने दो. तो GS1 में बात करते हैं. GS1 में मेजर थीम्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी. these 3 आर द मेजर थीम्स. उसमें आर्ट एंड कल्चर एक ऐड कर लो तो आप 4 थीम बन. ये 4 मेजर थीम्स होती है. इसी के अराउंड में सारा घूमता है. इफ यू वांट टू स्कोर गुड, आपको अगर नंबर अच्छे मिलाने हैं GS1 में, तो आपको ज्योग्राफी में आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही होनी चाहिए. साथ में हमारे साथ में जो जिसके भी नंबर अच्छे आ रहे हैं GS1 में 100 प्लस आ रहे हैं, उसका ये कॉमन फैक्टर एक ही रहता है कि जिसकी ज्योग्राफी अच्छी हो. ज्योग्राफी का सेक्शन आपका अच्छा जाएगा तो आपके मार्क्स GS1 में हमेशा अच्छे हैं. तो रेदर देन वी टेंड टू फोकस ऑन हिस्ट्री, बट अब पहले हमें क्या है, ज्योग्राफी पे उतना ध्यान देना है कि ज्योग्राफी किस टाइप की आ रही है ज्योग्राफी. तो GS1 में अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो आपको हमेशा ज्योग्राफी पे ध्यान देना पड़ेगा. और ज्योग्राफी में भी सेक्शन वाइज अपने वही पढ़ते रहो और टॉपिक वाइज करते रहो. त्रिशाली शर्मा, could you please repeat the subject of GS1? Geography, history, society, 3 major themes, and then art and culture in history only. तो ये 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं. इनमें आपको जो ध्यान देना है, सबसे पहले आपको फोकस देना है ज्योग्राफी पे. मेंस अभी पूरी बात कर रहे हो, मेंस ओरिएंटेड करें. प्री के मेंस का जब एंड खत्म हो जाएगा उसके बाद में प्री पे आएंगे. ठीक है. तो ज्योग्राफी सबसे ज्यादा ध्यान देना है. देन सोसाइटी. सोसाइटी का ऐसा है कि सोसाइटी में कॉमन थीम्स होती है, प्रेडिक्टेबल थीम्स होती है, हर बार की थीम्स रिपीट होती है. और सोसाइटी का कोई भी आप, अब जैसे पहले चलो एक बार ज्योग्राफी की बात कर रहे थे कि ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ती है. कोई भी आप स्टैंड ज्योग्राफी के एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है. आप पढ़ सकते 11th-12th की, तो 11th-12th वो तो आपको याद ही होनी चाहिए. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की एक बार देख लो, इतना जरूरी नहीं है, बट 11th-12th की ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है.
वो प्लस कोई भी स्टैंडर्ड नोट्स जो भी मार्केट में जिसके भी मिलते हो, एनी ऑफ रेपुटेड टीचर यू कैन फाइंड, किसी का भी मिलता हो तो ज्योग्राफी के बेसिक सोर्स। उसके बाद में अब बात कर रहा था मैं सोसाइटी की। सोसाइटी का सिंपल सा ये होता है कि प्रेडिक्टेबल थीम्स होती है, थोड़ा बहुत सोसाइटी में जो चल रहा है उसको आपको एग्जांपल्स करंट के हिसाब से थोड़े बहुत ऐड हो जाते हैं। बाकी लगभग 100 पेज का पूरा कंटेंट होता है ज्योग्राफी का, और वो आती है लगभग 80-90 नंबर की। तो आप देख लो कि एक पेज आपके 1 नंबर का पढ़ रहा है अगर आप पढ़ रहे हो तो। इसमें ही रहता है कि अगर आप टाइम जितना टाइम इसको दोगे उतना ही आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। तो सोसाइटी का पढ़ लो, सोसाइटी में मार्केट में आप इसका उठा लो, किसी का विजन का उठा लो, किसी की भी 90-100 पेज की मैगजीन आती है, ओनली इसका उठा लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, किसी का एक का उठा के और आप उसके थ्रू गो थ्रू कर लो, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कॉमन थीम है वो सब में करना ही। उसके बाद में बात हिस्ट्री पे आती है। तो हिस्ट्री में इसमें अपने 2 चीज पे फोकस करना है, मेंस ओरिएंटेड, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इन 2 चीजों पर फोकस करना है। मिडिवल को आप छोड़ सकते हो और वर्ल्ड हिस्ट्री को आप छोड़ सकते हो। छोड़ना है कि इनको आपको बस टाइम मिला, आपने गो थ्रू कर लिया, बट इनमें आपको एनर्जी नहीं देनी, इनमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको आर्ट एंड कल्चर पे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे फोकस करना है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ोगे आपको 1 महीना लगेगा, बट पिछले 6 सालों में वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी सवाल मैंने इसमें पूछा नहीं गया। तो अगर पूछ भी लिया तो एक आधा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने वही 250 में से 250 नहीं लाने। तो वो एक टाइम में एक बार गो थ्रू कर लो, रीड कर लो बेसिक। और ये कि फोकस कहाँ रहेगा, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, इनके अपने बेसिक सोर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये ओवरऑल थीम रहता है GS1 का, कि हाँ GS1 में कहाँ ध्यान देना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये ओवरऑल थीम है GS1 का। अब बात करते हैं GS2 की। GS2 में मेन थीम्स अपनी इंडियन पॉलिटी, उसके बाद में गवर्नेंस, उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन। 4 ये मेजर थीम्स होते हैं। इन 4 थीम्स में थीम बाय थीम बात करें तो पहले इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आप जैसे बेसिक लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो पूरा काम आएगा। उसके अलावा जो मेंस के प्रेडिक्टेबल थीम्स होती है, जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्शन कमीशन में पूछ लेते हैं, जो लॉज पे पूछ लेते हैं, उसके हिसाब से क्या है कि थोड़ा सा एड ऑन मार्केट में जो मेंस ओरिएंटेड मटेरियल होता है उसका पॉलिटी का, किसी टीचर के नोट्स का वो होता है, वो लक्ष्मीकांत को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। लक्ष्मीकांत लिटिल बिट ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो वो क्या है कि आपको कॉम्प्लीमेंट कर देगा और सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए इतना बेसिक आप रखो। उसके बाद में अब बात आ गई कि गवर्नेंस के लिए। गवर्नेंस में आपको किसी जैसा सोसाइटी का बताया था वैसे ही सेम गवर्नेंस का है। 80-90-100 पेज 100-120 पेज का मॉड्यूल आता है, ओनली किसी एक का मॉड्यूल उठाओ 100-120 पेज का, 50-60 नंबर का गवर्नेंस का पार्ट आता है, थोड़ा बहुत करंट से रिलेटेड होता है। किसी भी एक मॉड्यूल उठाओ, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ो, दोनों को सोल्व करो, बात करो। सोसाइटी, गवर्नेंस एंड जो अभी पार्ट आएगा वल्नरेबल सेक्शन, पॉवर्टी, वुमेन, ये वाला सेक्शन आएगा जो GS2 का पार्ट है। इसमें भी एक मॉड्यूल उठाओ आप, 60-70 पेज 80 पेज 100 पेज का मॉड्यूल आता है। कोई अपने बेसिक किताब कुछ नहीं होता, सीधा मॉड्यूल होता है, उसको उठाओ, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सोल्व करो, बात करो। ये 100 पेज का होता है। ये क्या होता है कि ज्यादा अपनी एनर्जी ज्यादा रहती कहाँ है, मेन सब्जेक्ट यार हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, स्कोरिंग ये छोटी छोटी चीजें ये ज्यादा स्कोरिंग होती है। क्या थोड़ा सा टाइम दोगे आप, 10 दिन में सोसाइटी तैयार कर लोगे, वो नंबर आएंगे आपको, दिखेगा भी। वैसे ही गवर्नेंस है, वो भी आप थोड़े दिनों में तैयार कर लोगे, उसमें भी दिखेगा। वल्नरेबल सेक्शन का आएगा, ये पॉवर्टी, एल्डरली क्लास, ये वाला सेक्शन आएगा, ये भी आप 10 दिनों में तैयार कर लोगे, इसमें भी आपको पूरा दिखेगा। तो ये उसका थीम हुआ। उसके बाद में अपने को GS2 की 3 थीम होगी। उसके बाद में GS2 का इंटरनेशनल रिलेशन। उसके लिए क्या, इंटरनेशनल रिलेशन का एक सिंपल सा फंडा होता है। आप 2 साल, पिछले 2 साल का मेंस 365 उठाओ विजन का, 2 साल का अच्छे से पढ़ो। 2 साल का विजन का मेंस 365, 2 साल का आप तैयारी के टाइम पढ़ लो। 1 साल का जब उस टाइम आए तब आए, बाकी करंट पे, छोटी मोटी चीजों पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान रखो। सबसे सिंपल, शॉर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट के लिए सिंपल है। 2 साल का मेंस 365 आप पहले पढ़ लो, और 1 साल जिस साल आप मेंस दे रहे हो उस साल पढ़ लो। इसके अलावा आप कुछ नहीं, तो वही 200 पेज का कंटेंट है टोटल। कहीं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कहीं कुछ नहीं पढ़ना।
जैसे आप सपोज करो कि 2026 में मेंस दे रहे हो, 2024 का मेंस 365, 2025 का मेंस 365, और जब 26 में दे रहे हो तो जिस टाइम मेंस दोगे उस टाइम पढ़ लो। तैयारी टाइम में पिछले 2 साल का पढ़ लो, होलिस्टिक सारे इश्यूज क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है, क्या इश्यू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आपको पूरा फ्रेमवर्क मिल जाएगा। बाद में न्यूज़पेपर वगैरह के साथ फॉलो करते रहो ताकि आपको पता रहे कि हाँ यार अच्छा ये चल रहा है, ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है, इन चीजों पर ध्यान देना है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखोगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से नहीं आ सकते। अब आते हैं GS3 पे। GS3 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे। उन सब में आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या रहता है कि अपन जब भी वही बात करते हैं, जब भी सोचते हैं, जब भी नाम सुनते हैं GS3 का, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इकोनॉमिक्स से आता है। पर अगर आप पिछले सालों को एनालाइज करोगे तो इकोनॉमिक्स जो कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स है उसके 2-3 सवाल आते हैं, वो भी बजट और इकोनॉमिक सर्विस। आपको इन डेप्थ जो प्री की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो वो अलग है, मेंस की जो पढ़ रहे हो वो अलग है। मेंस की जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो उसमें आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे कर लो आप अच्छे से, तो आपका लगभग 90% काम हो जाएगा, जो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पहले का, 1 साल जिस साल आप तैयारी कर रहे हो। 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं, वो उसी से रिलेटेड बनते हैं कि इस बजट में ये हुआ, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, बजट में क्या आया, तो वो बेसिक थीम वो बनती है। उसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट थीम है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे 3-4-5 सवाल आने हैं, 3 से लेके 5 सवाल के बीच में एग्रीकल्चर आती है। एग्रीकल्चर का भी सेम ही 70-80-90 पेज का मॉड्यूल आता है। बेसिक थीम्स है, रिपीटेड थीम्स है कि यहाँ खेती में, कृषि में क्या क्या सवाल बन रहे हैं, वो फिक्स है, वो हर साल बनते हैं, वो आप दोगे तो भी बनेगा। तो मेन फोकस एग्रीकल्चर के बाद में पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में भी स्पेसिफिक पोल्यूशन पे। तो इन्वायरमेंट में कहाँ ध्यान देना है, पोल्यूशन पे ध्यान देना है, पोल्यूशन रिलेटेड लो, ये बाद में इन्वायरमेंट के जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिलेटेड लॉज है, इसमें ये चल रहा है, इसमें ये हो गया, पोल्यूशन से ये हो गया, तो वो जो इन्वायरमेंट में जो लॉज है वो सारे काम है। और उसके बाद में एक मेजर थीम रहती है कि ग्लोबल एग्रीमेंट्स क्या है इंडिया के, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, COP26 गई, उनमें क्या हुआ, जो भी ग्लोबल एग्रीमेंट्स है उनसे रिलेटेड, उसमें इंडिया का रोल, इंडिया की कमिटमेंट्स। और उसके बाद में एक नेक्स्ट थीम बनती है, वो बनती है आज के टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी। तो एग्रीकल्चर, पोल्यूशन, ग्लोबल एग्रीमेंट्स इन इंडियाज कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी। ये 4 की थीम्स होती है। इन पे 2-2-3 क्वेश्चन करते करते 12-13 क्वेश्चन ये ऐसे हो जाते हैं। और फिर एक बेसिक थीम बनती है, वो बनती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, तो इससे कॉमन थीम एक ये बनती है। इस पे 1-2 सवाल आ रहा है, डेवलप हो रहे हैं, सस्टेनेबल है नहीं है, एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये उस पे ये आएगा। उसके बाद में सेक्शन बचता है कि साइंस एंड टेक। जब साइंस एंड टेक के लिए क्या करना है, साइंस एंड टेक में आप पढ़ोगे तो 10,000 पन्ने पढ़ लो, 1000 पन्ने पढ़ लो, 1500 पन्ने पढ़ लो, उसके बाद भी नहीं आएगा। आना होगा तो सिंपल सा आएगा, तो सबको आएगा। इसमें सेम रहता है भाई, 2 साल का मेंस है, जैसे इसरो नया कुछ लाया है, नासा नया कुछ लाया है, चाइना नया कुछ लाया है, और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये टेक्नोलॉजी की जो नई टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन चीजों पे 2 साल का मेंस 365 पढ़ लो, उसको थोड़ा सा समझ लो। नहीं समझ आ रहा है तो 1-2 बार यूट्यूब पे वीडियो देख लो, उनसे रिलेटेड बेसिक चीजें कवर हो जाती है। हमेशा ये रहेगा कि यार ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, उसमें क्या होता है, जो ये चीजें होती है, जो चीजें कवर करनी होती है वो कवर नहीं कर पाते, और आलतू फालतू की 1000 चीजें पढ़ लेते हैं जो याद बिल्कुल नहीं रहती। तो ये तो साइंस एंड टेक की बात कर रहे थे। साइंस एंड टेक में मेजर यही थीम्स रहती है। टेक्नोलॉजी अराउंड जो 2 साल का आप पढ़ लो, जिस साल दे रहे हो उन 2 साल का करंट अफेयर रिलेटेड ही साइंस एंड टेक आता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा बेसिक स्टैटिक एकदम छठी क्लास की साइंस से पढ़ना, ये करना नहीं करना कोई जरूरी नहीं है, ना पढ़ना वर्थ इट है। तो 2 साल के मेंस 365 आप पढ़ के जाओगे, मोर देन इनफ है आपके साइंस एंड टेक के लिए। ओवरऑल ये पूरा थीम रहता है GS3 का। अब बात करनी है GS4 की। GS4 टेक्स लेस टाइम बट हाईली रिवॉर्डिंग, क्योंकि वो 500 वाले एंगल से आ जाता है, और GS4 में सबसे ज्यादा नंबर आता है। GS4 में आप मान के चलो कि ऑन एन एवरेज आपका लिस्ट में नाम आ रहा है, तो एवरेज स्कोर 120-125 के अराउंड आपके मार्क्स आते हैं। तो ये देख लो कि GS4
हाईएस्ट रिवॉर्डिंग है जीएस 1 2 3 4 में, सब जिसमें कम मेहनत ज्यादा रिवॉर्ड, इसमें जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिवॉर्ड दिखेगा। बात अब जीएस 4 की बात करें, जीएस 4 में स्पेसिफिक एक स्टैटिक सोर्स उठाओ, आप किसी का पीयूष सर करके पीयूष सर का उठाओ, किसी का एक का मटेरियल उठाओ, और हो सकता है तो एथिक्स की आप क्लासेस कर लो, चाहे टेलीग्राम से कर लो, किसी कोचिंग से कर लो, किसी कर लो, एथिक्स में आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। केस स्टडीज एथिक्स बहुत कम टाइम लगता है एथिक्स करने में, फिर उतने ही ज्यादा नंबर आते हैं, उतना ही पेपर आप करने में इजी होता है। तो एथिक्स को हमेशा प्रायोरिटी पे लेके चलो, हमेशा अपन इग्नोरेंस पे लेके चलते हैं कि जीएस ये सब पढ़ते रहते हैं, पर एथिक्स को हमेशा प्रायोरिटी पे लेके चलो। तो एथिक्स ही हो सकता है आप कहीं से क्लास कर लो, टेलीग्राम से लेके कहीं से कर लो, किसी कोचिंग से कर लो, किसी के यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, वो क्लास करके किसी के स्टैटिक नोट्स उठा, आप लुकमान के उठा लो, ओनलीएस के उठा लो, पीयूष चौबे सर के उठा लो, वाजीराम के उठा लो, किसी एक के नोट्स उठा के स्टैटिक पोर्शन जीएस 4 पूरा कवर कर। जीएस 4 में थ्योरी पोर्शन होता है और केस स्टडी पोर्शन होता है। तो एक बार किसी टीचर के थ्रू, किसी के थ्रू आप कर लोगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ स्टैटिक सोर्स पढ़ते रहो, साथ साथ एक बार क्लासेस कर लो, तो एक बार एथिक्स आपकी हो गई। फिर मेंस के टाइम में क्या होता है, प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है, 80-90 दिन का होता है। तो एक बार आपकी एथिक्स पहले से तैयार की भी होगी तो आपको लगभग 7-8 दिन में आपकी पूरी वापस रिवाइज होकर पूरी कवर हो जाएगी। ये फायदा होता है आपको बिफोर एंड, क्योंकि उस टाइम जीएस वगैरह बहुत पढ़ना पड़ता है। तो पहले से अगर एथिक्स आपकी पहले से तैयार है तो आपकी चीजें अच्छे से कवर हो जाती है। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब आ जाते हैं एसे पे। किया एसे में क्या करना है, निबंध कैसे लिखना है। तो निबंध लिखने के लिए 2-3 चीजें हैं, सिंपल सी जो आपको ध्यान रखनी है। निबंध का पहला रूल है एसे राइटिंग का, यू हैव टू राइट इट, अदरवाइज कि आपको लिखना ही पड़ेगा, उसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लिखने के लिए कैसे लिखोगे, तो ऐसे राइटिंग का लिए ये रहता है, ऐसे राइटिंग या आंसर राइटिंग इन जनरल अगर मैं बात करूँ, उसके लिए होता है आप वेबसाइट्स पे जाइए, कोचिंग से जाइए, सब कुछ जाइए और टॉपर्स की कॉपीज दीजिए। तो टॉपर्स की कॉपी देके उनसे देखिए कि वो क्या चीज लिख रहे हैं, क्या कैसे लिख रहे हैं, कौन उनको क्या चीज बता दे, उनको कैसे प्रेजेंट किया है, आप क्या चीज लिख सकते थे, आपको किन चीजों का। मेरा ऐसा होता था कि जब मैं मेरे सीजन में ऐसे कभी जब भी मॉक देता था, जब भी टेस्ट दिया, 12 तक मैथ थी, उसके बाद तो कभी पढ़ी नहीं, पर कभी मेरे 100 से कम आई, तो मैं कभी सीसेट का पढ़ता ही नहीं। तो हर साल 100 से कम आ रहे, कितने पेपर रियल पेपर में कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, 66 लाने। तो उस हिसाब से तैयारी होगी। अगर वो है कम आ रहा है तो आपको तैयारी करनी है। अगर आपके आराम से क्लियर हो रहा है, 100 के अराउंड मार्क्स मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में या देख के, तो आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पेपर से पहले 4-5 मॉक लगा लो, सोल्व कर लो, तो प्रैक्टिस कर लो, 2-4 पेपर सोल्व करके इतने में ही हो जाते हैं। तो फिर उससे क्या है कि डिपेंड करता है कि आप तैयारी की किस लेवल पे, आपका सीसेट कैसा है, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग बनेगी कि सीसेट में कितना ध्यान देना है। अगर आपके सीसेट में कम आ रहे हैं, सपोज करो 30-40 नंबर आ रहे हैं, एकदम वीक है, तो आपको ये भी हो सकता है कोई क्लास कोचिंग ज्वाइन करके कोई सीसेट का अलग से स्पेसिफिक कोई टेलीग्राम से कोर्स लेगी, क्योंकि पेपर तो सारे पास करने हैं। आप जीएस में तो 200 में से 200 ले, सीसेट नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आप किस जगह पे हो, कितनी तैयारी हो रही है, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, उस हिसाब से आपको सीसेट को अप्रोच करना है। अगर आपके 100 आ रहे हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके तो अगर आपके 70-80 आ रहे हैं तो आपको पता है थोड़े से इंप्रूव करना है। तो आप मेक श्योर कि मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर में आपके 90-100 के अराउंड नंबर आ रहे हो, तो आप सेफ जो है, आप कोई सीसेट का कोई झंझट निकालना, अपने बेस पे ध्यान दो, उसकी तैयारी करना। अगर 30-40-50-60 आ रहे हैं तो आपको मतलब कम आ रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिकली सीसेट को पहले से ही टारगेट लेके चलना पड़ेगा। साल भर में धीरे धीरे डेली 2-3 घंटे, ताकि इंप्रूव होते होते आपकी इंप्रूवमेंट अच्छी हो जाए। ये सब बेसिक ओवरऑल ये रहता है। और पहले ये होना चाहिए कि जब तक आप पेपर, सपोज करो आप 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो या 27 का अटेम्प्ट दे रहे हो, जो अटेम्प्ट दे रहे हो उसके प्रीलिम्स से पहले जैसे सपोज करो कि 27 का प्रीलिम्स सपोज करो कि जून में हो, तो 27 के जून से पहले आप एक टेस्ट सीरीज जैसे कि एक एथिक्स की और एक ऑप्शनल की, 3 टेस्ट सीरीज आप दे चुके होंगे। कोचिंग लो ना लो मैं नहीं सजेस्ट करता, पर जिस साल आप अटेम्प्ट दे रहे हो उससे पहले इन तीनों की एक टेस्ट सीरीज आप दे लें। क्योंकि मतलब ये कि अगर आपको प्री पे ध्यान देना, आपका प्री होगी और मेंस नहीं हुआ, अपना टारगेट इंडिविजुअली टारगेट किया, अपना टारगेट फाइनल सिलेक्शन में। किसी को साबित ये नहीं करना मेरा प्री हो गया, मैं मेंस दे रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उस पे आपको अपना टारगेट सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन कहाँ से होगा? सिलेक्शन होगा मेंस से।
उसमें आप मेंस में ऐसे एथिक्स ऑप्शनल, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप जब भी जिस साल अटेम्प्ट दे रहे हो उससे पहले इनकी एक टेस्ट सीरीज आप दे दो, एक अपने ऑडियो एक एथिक्स की दे दो। ये आप उससे पहले क्या दे चुके हो, ये आप चीजें ध्यान रखना कि हाँ ये टेस्ट सीरीज दे दी है, ये चीज हो गई है, ये चीजें होनी चाहिए। जिस साल भी आप अटेम्प्ट दे रहे हो उससे पहले ये 3 चीजें आप आराम से कर लेना। तो ये बेसिक ओवरऑल ये स्ट्रेटजी है। इसके अलावा बाकी आपकी जो क्वेरीज हैं, जो आप पूछ रहे हो कर रहे हो इंडिविजुअली, तो अपना इंट्रो देखिए या किस फेज में हो तैयारी में, अभी कॉलेज में हो, पास आउट हो गए हो, तैयारी कर रहे हो, किस साल अटेम्प्ट देने का है, तो वो भी। इसके अलावा जो आपको डाउट्स बचे, जो आपको जेन्युइनली लगता है कि यार ये मुझे पूछनी चाहिए, कई चीजों में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन आस्क। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी सर। सर एक्चुअल में मेरे साइनस का ऑपरेशन था, इस वजह से सर मैं मेरे सेमेस्टर का एक पेपर नहीं दे पाया था कॉलेज में। तो उसमें मतलब सर बेसिकली सर वो बैक आएगी मेरी। तो सर क्या वो मेरे इंटरव्यू में या यूपीएससी में वो आपकी बस ग्रेजुएशन, आप डिग्री होनी चाहिए, आप डिग्री पूरी होनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं। इंटरव्यू में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी सर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डिग्री होनी चाहिए, जेन्युइन डिग्री होनी चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी आपके मेंस और नंबर इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी जो आप बोल रहे हो कर रहे हो वही होता है, ये सब। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक बार आप जैसे आपने प्री और मेंस का बताया प्रिपरेशन का, एक बार आप इंटरव्यू का बता सकते हो प्रिपरेशन का? इंटरव्यू का आपको अपना मिल जाएगा, इंटरव्यू की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप प्री मेंस करो, इंटरव्यू अपना मिल जाएगा। इंटरव्यू के टिप्स नहीं होते, इंटरव्यू उस टाइम जब आता है तभी टिप्स मिलते हैं, तभी तैयारी होती है। Good evening, थैंक यू sir. सर। My name is Mana Kasal. Currently, I am pursuing BA program in English plus history, and in RLA, I am holding the position vice president. So basically, we have released the many forms of like your speaker session, and we get many of the questions. So I have summarized some 2-3 questions, and I'm going to ask you. The most probably question is that ki how we must take the preparation with college time. Like how can we balance the college life and the UPSC coaching also? हाँ, कॉलेज व्हाट आई यूज्ड टू पता कि जैसे कॉलेज चल रहा है तो न्यूज़पेपर कर लो, और न्यूज़पेपर के साथ में 2-3 घंटे 3-4 घंटे, मतलब आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटा न्यूज़पेपर में लगा, 1-1.5 घंटा, 2-2.5 घंटे आप स्पेसिफिक थोड़ा बहुत पढ़ते रहो ताकि आप तैयारी में जुड़े रहो। और जब ये हो गया, जैसे बीच में मिड सेम ब्रेक आया, पूरा सेमेस्टर ब्रेक आया, या सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ आया, तो उस दिन क्या 7-8 घंटे निकाल, तो मेक श्योर कि आप तैयारी के आसपास हो। और ये कॉलेज टाइम में ये क्या होता है कि जो मैंने थोड़ा लेट सीखा थे, पार्ट ऑफ सेइंग कि आप मतलब सब बुला रहे, इसका आज याद आना, आज याद आना, आज ये करना, आज ये करना, आप करते रहते, आप खुद को पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। तो जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिन लोगों के आपको जाना है, जिन लोग आपके ऐसे, तो जिसके 100 दोस्त होते हैं उसका कोई दोस्त नहीं होता, तो वो वाली बात है। तो आपको अपना टाइम जुडिशियली यूज करना है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ लिया, 1-2 घंटा वैसे पढ़ लिया कॉलेज टाइम के साथ, कभी लाइब्रेरी में बैठ के कुछ किताबें पढ़ ली। और ये कि कॉलेज में तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, हॉबीज वगैरह पे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, इनमें ऐसे में भी फर्क पड़ता है, इंटरव्यू भी सही रहते हैं। तो कॉलेज की लाइफ पे भी अपना पूरा फोकस कीजिए। बट ये कि वीकेंड्स हो गए, मिड सेम ब्रेक हो गया, सेमेस्टर ब्रेक हो गया, उसमें थोड़ी सी तैयारी कीजिए। बाकी डेली न्यूज़पेपर और 1-आधा घंटा 2 घंटा जितना निकल जाए, तो ये बाकी ज्यादा ये है कि ऐसे नहीं है कि कॉलेज की क्लासेस स्किप कर रहे हो, कॉलेज में कुछ अच्छा हो रहा है वो स्किप कर रहे हो, उससे फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। Thank you, sir. So one more question ki like we are preparing the notes. Like for example, we are seeing the one video and we took 2 hours basically for preparing the notes. Is there any like any other option ki we can do in 1 hour only the video complete and make the good notes? Like how you have prepared for your notes? गुड नोट्स इज अ मिथ। आप कभी आपकी गुड नोट मेकिंग और नोट्स आपके कभी बनने पूरे नहीं होते, पेन बदलते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो अगले साल में कुछ, मैं आई एम गेटिंग द पॉइंट कि अगले साल में फिर और कुछ नया आ जाएगा, फिर और कुछ। तो इसके क्या होता है, जो आप चीज कर रहे हो मेक श्योर जिसके नोट्स मार्केट में मिल रहे हैं सीधा वहीं से उठा लो, उसी में साइड में लिखते रहो। कुछ आपको वैल्यू एडिशन लग रहा है, कुछ पॉइंट लग रहा है, उसी में लिखते रहो। वो एक वाला पॉइंट होता है कि गधा मजदूरी, वो वाली मत करो कि टाइम जा रहा है पूरा 1-2 घंटे का कोई लेक्चर है तो उसको आप 4 घंटे में पूरा कर रहे हो, बीच में रोक के नोट्स लिख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी के नोट्स आपके पास होना चाहिए। Yes, sir.
ठीक है, साइंस एंड टेक थोड़ा बहुत लिख के पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स आपके पास हल्के फुल्के होने चाहिए। और बाकी की टर्म्स और छोटे छोटे वैसे लिखते रहो। बाकी और तो स्पेसिफिक ऐसे आप हिस्ट्री के बैठ के नोट्स बनाने का काम किसका है? टीचर का, कोचिंग्स वालों का, जो पैसे खा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कर रहे हैं, वो उनका काम है, वो प्रोफेशनल्स है। अपन कुछ भी मेहनत कर लेंगे, इंडिविजुअली कितने ही बैठ के माथा बच्ची कर लेंगे तो उनसे अच्छी नहीं बना पाएंगे। अगर आपको कोई चीज मार्केट में रेडीमेड मिल रही है और आप अगर 3 महीने बैठ के उससे अच्छी बना सकते हो तो ठीक है, नो डाउट आप हो सकता है उससे 1-2% अच्छी बना भी ली। और ये ना आपके 3 महीने खराब हो गए, आप उसमें दूसरी चीजें कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो। अपने को परफेक्शन लाना ही नहीं है। परफेक्शन जो अपने का अपना प्राइमरी टारगेट यही है कि जो है अवेलेबल, जो अच्छी चीजें मिल रही है वो मैंने कर ली, क्या वो मेरा हो गया। उसके बाद में अगर चीजें नहीं आती, उसके बाद में अगर आपको दिक्कत आती है, फिर आप मेंटोर से, टॉपर से, किसी सीनियर से कंसल्ट करो। सर उसके बाद भी मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरा मेंस नहीं हो रहा, मेरा प्री नहीं हो रहा, वो स्पेसिफिक तैयारी का स्पेसिफिक डाउट होगा। अभी तो इन चीजों पे वो एक्स्ट्रा मत करो कि हाँ यार क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ज्यादा नोट्स। सर आपका ऑप्शनल क्या था? और सर अगर हमें ऑप्शनल लेना हो तो उसके बारे में सर क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है सर जब ऑप्शनल लेना है तब? देखो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, which I don't suggest anymore to anyone। थोड़ा टफ रहता है, लंबा रहता है, अच्छा सब्जेक्ट है बट वही थोड़ा लेंथी वैसे रहता है। तो ऑप्शनल ग्रेजुएशन बी ऑनर्स हिस्ट्री हो तो हाँ वो सब बीए भी है, एमए भी है, नेट जेआरएफ सब है। तो उसका ये रहता है कि जैसे स्पेसिफिक आप ऑप्शनल ले रहे हो तो ऑप्शनल एक तो ये रहता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वो रहता है, पढ़ा लेता है, तो एक थोड़ा फायदा रहता है। बट फिर ये है कि आपको ये देखना पड़ता है कि यूपीएससी में क्या चीज काम कर रही है क्या नहीं कर रही, किसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं, किसमें कम मेहनत में ज्यादा आ रहा है। हिस्ट्री ऑप्शनल की ये है कि ठीक है आप थोड़ा बहुत प्री में, थोड़ा बहुत मेंस में फायदा हो जाता है, बट मेन दिक्कत ये है कि स्कूल लेंथी आपको प्री और मेंस के बीच में 90 दिन मिलते हैं, उसमें 40, 45, 50 दिन आप हिस्ट्री ऑप्शनल ही पढ़ रहे हो। तो जीएस में उधर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसमें ये रहता है कि ऑप्शनल एक प्राइमरी तो हमेशा ये रहता है, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से लेते हैं, तो उसी पे फॉलो कीजिए। बट थोड़ी चीजें अगर आपको ऐसे होना कि 2-3 सब्जेक्ट में आप कंफ्यूज हो रहे हो, फिर उसमें आप ये देखना कि जो छोटा है, जो थोड़ा इजी है, इसको सिलेबस थोड़ा छोटा है, कम टाइम में कर सकते हैं, तो उसकी साइड थोड़ा ज्यादा। सर लेकिन जैसे अगर ऑप्शनल मतलब सर ग्रेजुएशन तो ओपन से कर रहा हूँ सर, तो उसमें तो सर क्या ही पढ़ता हूँ, कुछ पढ़ता तो मतलब अगर आप कुछ सब्जेक्ट सजेस्ट करना चाहें। हिंदी मीडियम से तो हिंदी साहित्य बड़े, एंथ्रोपोलॉजी में तो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब चलते हैं। Sir, this is Riyaz. I'm from TU South Campus. I want to ask how much time should it actually take to crack this up? कोई नेम मतलब देंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आ जाइए, वरना मतलब सारे अनम्यूट करेंगे तो दिक्कत। हाँ Shall I continue? हाँ So, sir, actually, this is Riyaz Khan from TU South Campus, pursuing BA Honors History, preparing for 2027 attempt. Sir, I wanted to ask how much time will it actually take you to crack the examination, and how should we identify the sources that we're relying upon are actually genuine in nature and are self-sufficient? So, because what actually happens कि हमने बहुत सारे sources पढ़े हैं हमारे पास, but ये नहीं पता होता कि कौन सा sufficient है और उसे कैसे पढ़ना है और start कहाँ से करना है। NCERT पढ़ना शुरू करें। जो भी आप पढ़ रहे हो आप देखिए कि उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो। कितने साल लगे थे प्रिपरेशन के लिए बस? यस तो आपका टाइम ड्यूरेशन क्या था, कितने साल लगे थे आपको प्रिपेयर करने में और कितने घंटे आपने दिन में पढ़ा था? घंटे तो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज होता है डेज पे। जिस टाइम जैसे प्री और मेंस के बीच में 10-12 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, नॉर्मल डेज में 6-7 घंटे भी चल जाता है। शुरू के आप फाउंडेशन जब आप तैयारी कर रहे हो, आपका बेस बना रहे हो, तब तो आपको Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, what are key points to write a good essay? सर एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि जैसे कॉमर्स एंड ऑप्शनल हम ले सकते हैं ऑप्शनल में, क्योंकि वो टेक्निकल रहता है तो कई लोग सजेस्ट नहीं करते। नहीं, ऑप्शनल आप सब ले सकते हो, सब में सब तरह के नंबर है। इट्स अबाउट योर कंफर्ट जोन कि आप उस ऑप्शनल में कितने कंफर्ट हो, आपकी इतनी पकड़ है और आपको कितना आता है, वो उस पर डिपेंड करता है। कॉमर्स में हर ऑप्शनल में हर तरह का सिलेक्शन होता है, हर तरह के नंबर आते हैं। तो कोई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज।
ठीक है कॉमर्स ले सकते हो, अच्छा है, अच्छा लेते हैं। मेरे काफी साथ के लोग हैं, उन्होंने भी किया है, जैसे SRCC हैं कुछ लोग, उनके पास पेमेंट था। तो हर ऑप्शनल में हर तरह के नंबर आते हैं, तो वो तो कोई वो मिथ नहीं है कि भाई मेरे ऐसे आएंगे नहीं आएंगे, तो वो तो आपकी पकड़ और आपकी समझ पे है, आप कैसे कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा अटेम्प्ट 2028 में है और सर मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट में जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें एनरोल ले रखा है, बट सर अभी मेरा बेसिक उतना नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि जहाँ पे वो जो पढ़ा रहे हैं वो उतना मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है। जब वो टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें सर वो लिखाते नोटबुक में 4 लाइन है पर पूछते 10 लाइन है, तो वो जो सर बाकी मैटर है वो मैं कहाँ से कवर करूँ, जबकि मैंने एक बार NCERT भी पढ़ रखी है सर। अभी के लिए आपको क्या करना है कि बेसिक रेदर देन कि ऐसे कि यार ये कर रहा हूँ, ये मुझसे हो नहीं रही, जो आप कर सकते हो स्टडी का, आप जो क्लास में बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, कर रहे हो, कोशिश करो उसको आप अच्छे से करो। बाकी चीजें जो धीरे धीरे होगी, जैसे क्लासेस पूरी होगी उसके बाद में वैल्यू एडिशन मटेरियल आएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का, कि यहाँ से 4 चीजें आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। वो 4 चीजें पढ़ने की जरूरत जब पड़ेगी जब आपको पहले की 10 आती होगी। अभी आप रेदर देन गेटिंग डिप्रेस्ड और टेंशन में कि यार मैं वो पढ़ रहा हूँ, मेरे को वो आ नहीं रहा, थोड़ा वो टाइम के साथ समझ भी बढ़ेगी, टाइम के साथ आप टॉपिक्स को अच्छे से करने लगोगे, धीरे धीरे ग्रेजुएशन भी हो रही है, न्यूज पेपर्स वगैरह पढ़ रहे हो, सब चीजें होगी, धीरे धीरे वो चीजें डेवलप अपने आप हो जाएगी। अभी आपकी प्राइमरी ड्यूटी ये है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास में करवाया जा रहा है, जो आपको क्लास में असाइनमेंट मिल रहा है, वो आप अच्छे से ईमानदारी से करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो सर है ना सर, मेरी जो हैंड राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो सर उसका मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, तो उसमें हैंड राइटिंग का कितना रोल रहेगा सर यूपीएससी एग्जाम में? हैंड राइटिंग का इतना रोल नहीं रहता, 2-4% ऊपर नीचे रहता है, बट आप ऐसी हैंड राइटिंग लिखो जो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ रही है। या तो 2-4 पेन अलग अलग ट्राई कर लो, थोड़ा बहुत खुला लिख के ट्राई कर लो, 2-4 एक्सपेरिमेंट होते हैं वो। बाकी है कि जो आप जो भी चीज लिख रहे हो सामने वाले को समझ आनी चाहिए, अच्छी है कि नहीं है वो तो बात की बात है। पहला प्राइमरी टारगेट है जो भी आप लिख रहे हो वो 5 लोग पढ़ रहे हैं तो उन 5 को समझ आनी चाहिए कि हाँ ये चीज इसमें लिखी है तो मैं समझ रहा हूँ, अच्छी बुरी तो बात की बात, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी सर यूपीएससी अभी मतलब बहु आयामी से जो मतलब सारे डायमेंशन में से क्वेश्चन पूछती है, तो सर अब जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जिनका जो ओपन कॉलेज है इतना नहीं हो पाता है डीयू जैसा, तो वो सिर्फ जो अपनी थिंकिंग है वो ऑल डायमेंशन से मतलब कैसे आपको देखिए आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, क्या वैल्यू एडिशन पढ़ रहे हो, इसमें किस कॉलेज से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका एक थोड़ा बहुत रोल रहता है, पर मेन नहीं रहता कि आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। उसके लिए आप न्यूज पेपर्स वगैरह पढ़िए, थोड़ी बहुत चीजें डाइवर्स चीजें देखिए, थोड़ा बहुत इधर उधर यूट्यूब पे कुछ अच्छी चीजें देखिए, वो चीजें डेवलप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज दिल्ली में या डीयू में आके या यहीं कहीं होती है या गाँव के पृष्ठभूमि के साथ में होती है। ये डिपेंड करता है आप क्या चीजें पढ़ रहे हो, आपकी सोच क्या है, आप क्या कर रहे हो, कैसा सोचते हो, उस पर डिपेंड करता है, रेदर देन कि आप कहाँ पर हो, जगह का नहीं फर्क पड़ता। सजेशन कुछ चीजें या कुछ नाम जो आप सजेस्ट कर सकते हो सर अपनी थिंकिंग को उसमें में लेने के लिए? आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़िए, न्यूज़पेपर में अच्छी अच्छी चीजें आती है, सब चीजें देखिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या अच्छा है बुरा है, सब दिखता है, उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कीजिए और सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या व्यूज हैं, कैसा होना चाहिए, वो अपने आप हो जाता है, आपको इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, मुझे एक्चुअली पूछना था क्योंकि आपने बोला कि आपका ऑप्शन हिस्ट्री था, तो मुझे जानना था कि उसका प्रिपरेशन मैं अभी कैसे शुरू करूँ। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज में, तो मैं अभी से अगर शुरू कर रही हूँ तो कैसे कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि हिस्ट्री तो वेरी वास्ट है। कॉलेज में आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट? जी नहीं, मेरा बीए प्रोग्राम है ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस फिलोसफी, और ह्यूमन डेवलपमेंट में मैं मेजर कर रही हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस फिलोसफी? जी सर। तो फिर आपको हिस्ट्री में लेना है? एक्चुअली सर मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली सीयूईटी में मेरा कट ऑफ इतना गया नहीं कि मुझे हिस्ट्री ऑनर्स या वो मिल जाए, बट हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल मैं नहीं छोड़ना चाहती, बिकॉज हिस्ट्री इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट व्हाट आई बिलीव, क्योंकि सीयूईटी में भी मेरे सारे सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री हाईएस्ट आया था। हाँ, तो फिर तो हिस्ट्री की क्या है कि आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे हिस्ट्री ऑप्शनल के रिसोर्सेज, उसमें जो बेसिक जो बुक्स हैं जैसे आर एस शर्मा हो गई, सतीश चंद्र हो गई, तो बेसिक बुक्स है अभी जो है एक एक किताब में वो पढ़ते रहो, उसके बाद आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। वो एक स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट लाइक एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, देन ओके सर फर्स्ट वर्ल्ड से शुरू करें या इंडियन से?
इंडियन से शुरू करो, एंशिएंट से शुरू करो। एंशिएंट तो सीक्वेंस में रहेगा, फ्लोज अंडरस्टैंडिंग रहेगी, समझ आता रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। मेरे सोल हो गए हैं, वो प्लीज हैंड मतलब डाउन कर लीजिए तो हमें पता रहेगा किसका हेलो सर नमस्ते सर। सर सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अपना नाम बताइए फिर पूछे ताकि मेरे को पता रहे कि कौन पूछ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ सर, मेरा लक्ष्मण बिश्नोई, मैं बी ऑनर्स हिस्ट्री फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ ड्यू में। तो मेरा ये है कि मैं 12th तक हिंदी मीडियम में था, यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर अब हिंदी और इंग्लिश के बीच क्या करूँ वो समझ नहीं आ रहा है। अब तो यही है, या तो 3 सालों में इंग्लिश में बदल जाओ, वरना हिंदी तो है ही, तो कोई दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। एक बस ये है कि एक डिसीजन टाइम से ले लो ताकि उसके हिसाब से चले। क्या करें, हिंदी ले कि इंग्लिश ले? तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको करना है। इंग्लिश लोगे तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, हिंदी है तो बाकी चीजों पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दूसरी चीजों पे ध्यान दे सकते हो। तो आप पे बल्कि कंफ्यूज मत रहो, एक चीज डिसाइड कर लो फिर उसके थ्रू जाओ। बट हिंदी में कॉम्प्लेक्स रहता है ना कि रिसोर्सेज नहीं है, सिलेक्शन कम हो रहे हैं और बहुत जो सारी चीजें। तो हमारे साथ इतने जो पढ़ते हैं जिनका अच्छा है, सबका होता है, सब तरह के आते हैं। ऐसा तो कुछ वो है नहीं कि होता नहीं है। ये तो आपकी है कि आप कितनी है, आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो उस पे है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि होता नहीं है। ये इन सब चीजों से बाहर आइए, आप मिथ पे मत जाइए, आप अपनी तैयारी पे, आप डेडिकेशन पे, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। अभी आप इन सब चीजों में पड़े हुए, वैसे नहीं होता वैसे नहीं होता, तो कैसे होगा बता। बट जैसे यहाँ प्रोफेसर होता है ना, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, हर बैकग्राउंड, हर ऑप्शनल, हर मीडियम से सिलेक्शन होता है जिसका होना चाहिए। बट यहाँ प्रोफेसर वगैरह होते हैं ना, तो वो सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं और वो सब प्रोफेसर होते हैं ना ड्यू के, तो वही बैकग्राउंड अलग है, वो अलग तरीके से देख रहे हैं, उनकी चीजें अलग है। आपको थोड़ा बहुत फोटोकॉपी में, ट्रांसलेशन में, इधर उधर मेहनत, नोट्स के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़ा इश्यू रहता है। बट वही है कि ये तो अब प्रोफेसर को भी आप ऐसे गलत नहीं कह सकते ना, उसकी लिमिट, वो एक क्लास में हिंदी सब पढ़ाता है, उसका मीडियम इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में प्रीफर कर देता है। तो वो वाली चीजें हैं, ये तो आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते। बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको नोट्स इधर उधर करने में, ट्रांसलेट करने में, नोट्स इधर उधर लेने में थोड़ी बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, वो लोड रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में नहीं होते, इंग्लिश में नहीं होते, या फिर खुद को ऐसे लो फील करना कि यार मेरा मीडियम हिंदी है, इनका इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे ध्यान दीजिए, आप मेहनत करोगे तो आपका ही होगा, मीडियम आपका चाहे कौन सा भी हो। आपने उपिंदर सिंह पढ़ी है, हिस्ट्री ऑनर्स आपका भी था। हाँ, हिस्ट्री था तो हिस्ट्री का ठीक था। वैसे मैंने तो इंग्लिश में स्विच कर दिया था, नहीं तो फिर टीचर वगैरह हमारे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देते थे। आप पूछते हो तो हिंदी में भी समझा देते हैं, इंग्लिश में समझा देते हैं। फिर आपको ये है ना, आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा, आपको हर क्लास में जाकर बैठना पड़ेगा, टीचर से बना के रखनी पड़ेगी। टीचर्स तो हर जगह बताने को तैयार है, आप कितना रेगुलर हो, कितना अटेंशन देते हो, कितनी चीजें समझते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। टीचर हो या कोई भी हो, आप उनसे कितना ले सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। टीचर तो सबको पढ़ा के ही जाएगा। आप 12th तक हिंदी मीडियम में थे क्या? आई थिंक हमें काफी एंड रिजल्ट तो मैं आई थिंक की तरफ होना चाहिए। आई थिंक आई विल लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट साइनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ सर। मेरा नाम सूर्य जैन। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि पीयूवीवाई क्यों अपन सॉल्व करते हैं, तो सर उसमें सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर? मतलब कुछ हिंट मिलते हैं ना कि कैसे आगे अपन अब सॉल्व करके वापस अपन फिर वापस बुक पे नोट पे जाते हैं? हाँ, तो हर बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर किताब पे जाओगे तो हर बार नई चीजें मिलेगी, हर बार नई चीज सीखोगे, हर बार आपको 4 चीजें नहीं पता चलेगी सेम ही किताब में। सर कुछ ऐसी बातें हैं जो सर आपको लगी स्पेशली कि पीयूक्यू में ये पता होना चाहिए सर? पता है, मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको एक बेसिक सेंस आ जाता है कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या और चीजें कर सकता हूँ। तो वो बेसिक आपका चेकिंग मेथड होता है कि आप खुद को चेक कर रहे हो, तो वही रहता है। उसके हिसाब से जहाँ आपको कमी लग रही है वहाँ सुधार करो, जहाँ अच्छा है वहाँ आगे बढ़ो। धन्यवाद सर। Hello sir, I'm Ashika from Sri Venkateshwar College.
I actually wanted to ask that I'm preparing for UPSC, but I belong from a science background. So I have got problem with art and culture क्योंकि वो थोड़ा bulky लगता है and it's lot of history. So can you suggest a good source so ज़्यादा like it's not bulky also ज़्यादा and me being from science background थोड़ा comfortable भी हो जाऊँ मैं उससे. And so for that art and architecture pick a basic source and focus on previous year question. आप सिर्फ previous year question solve कर लो उतना ही बहुत है आपके. वो आप अच्छे से पढ़ लो याद कर लो उतना ही बहुत है. बल्किनेस में आपको जाने की जरूरत ही नहीं. आप पिछले 10 साल के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो आर्ट एंड कल्चर का वो सॉल्व करके एग्जाम में बैठ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, sir. And actually, current affairs कितने like year के cover करने चाहिए? If I'm preparing for 2026, तो like 2025 is sufficient कि उससे ज़्यादा? अगर 26 तक कर रहे हो तो जनवरी 2025 से करंट अफेयर करना शुरू कर दो. बाकी न्यूज़पेपर्स वगैरह डेली पढ़ो. More than enough. Okay, sir. Thank you so much. एक कोचिंग का आप YouTube पे न्यूज एनालिसिस देख लिया करो. शाम को 8-9 बजे आधे घंटे का एक किसी भी कोचिंग का आता है YouTube पे वो देख लो. More than enough for current affairs. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर. मैं विश्वेश बोल रहा हूँ सर. लाइक सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस DU से कर रहा हूँ सर. सर मेरे सवाल है कि हम BA से बाद UPSC करना अच्छा है और MA के साथ UPSC प्रिपरेशन करना अच्छा लगता है सर. मेरे को मास्टर्स करने से भी अच्छा लगता है सर मेरा मन में. डिपेंड आप मास्टर्स के साथ अगर UPSC प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड. अगर उसमें दिक्कत है तो फिर टाइम का अगर इशू रहता है तो फिर BA भी ठीक है. BA से भी काम चल जाएगा. आपको बेसिक डिग्री तो BA की चाहिए. ये तो आप पे है कि आप दोनों में क्या प्रेफर करते हो. टाइम मास्टर्स अगर आप रेगुलर कर रहे हो DU या JNU से कहीं से रेगुलर मास्टर्स कर रहे हो तो टाइम तो जाएगा. सर DA सर मेरे को ज्योग्राफी को थोड़ा हार्ड लगता है. उसमें को कैसे सिंप्लीफाई करना है सर ज्योग्राफी को? सिंप्लीफाई कुछ नहीं. आप 2-3 बार पढ़ो थोड़ा बहुत. जो आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसको YouTube पे देख लो. एक बार YouTube पे डाल के वो टेक्निकली आपको डायग्राम वगैरह से टेक्निकली समझा देगा तो हो जाएगा. Am I audible? थैंक्स. Good evening, sir. सर एक्चुअली शायद लाइक हमारे पास टाइम की शायद थोड़ी कमी हो सकती है. तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइक आप कितनी देर के लिए और अवेलेबल? ठीक है अभी थोड़ा चलने दो. अभी आधा घंटा और लेते हैं. कोई दिक्कत नहीं. और एक रिक्वेस्ट है कि एक क्वेश्चन ही पूछो. लाइक बहुत सारे हैंड रेज है तो उसमें ज्यादा टाइम ना लग जाए. तो लाइक मैं नाम तक बोलूंगा आप हैंड रेज करके रखो तो उसके हिसाब से जल्दी तो वंदना. Good evening, Vandana Krishna this side. I am currently studying in Miranda House pursuing sociology honors. So my question to you, sir, is that I want to know that like I am comfortable in sociology, but there is when I go to teachers who are teaching political science honors or something like that, they just kind of suggest that you should switch your optional for PSIR. Like they just kind of try to divert the intention. So can you give a brief line that is sociology even like worth defining the way? They just kind of try to influence the way out there. So I just in general want to know that is it actually like worth taking over PSIR or like so. Sociology is like sociology. Also, say something for names you can suggest for like particularly some book list or. सोशियोलॉजी ठीक है. आपको अगर सोशियोलॉजी अच्छा लग रहा है सोशियोलॉजी जैसे लग रहा है तो बेटर है. मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, एवरेज स्कोर भी अच्छा है, सिलेक्शन भी अच्छे हो रहे हैं. सोशियोलॉजी इज फाइन. ओके रौनक.
विनय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम विनय है, मैं सीकर राजस्थान से हूँ। सर, वैसे तो आपने सारी क्वेरी सोल्व कर दी है, बट मैं दो चीजें पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट से कर रहा हूँ मैं, और मेरा जो इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री में है, तो मतलब हिस्ट्री के बारे में बहुत ही ज्यादा, मतलब जो भी ये बोलता है कि बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है, तो ये बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले कितना लेंदी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बाकी सब्जेक्ट में, जैसे बाकी सब्जेक्ट सपोज करो कि प्री और मैथ्स के बीच में 30 दिन में कवर हो जाते हैं, जिसमें 40-45 दिन लगता है, तो 8-10 दिन का फर्क रहता है, इतना लेंदी है। और सर, जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो मतलब मुझे अपना पीजी का भी देखना है, तो और इन चीजों को मतलब मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज? टाइम तो ये डू व्हाट यू कैन डू बेस्ट। जब बैठे हो जो चीज कर सकते हो उस टाइम करो। जैसे पढ़ना है तो वेले बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे उस टाइम को जितना टाइम निकाल सकते हो मैक्सिमम वही निकालो। यही एक ही रूल होता है कि जब आप बैठे हो, जब कुछ कर सकते हो तो वो चीज कर लो। जैसे पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना चाहिए, वो सिंपल फंडा वही रहता है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो फिर कुछ कर ही नहीं, तो टाइम है तो उस टाइम कर लो। ये तो आपको खुद के जज आप खुद ही हो। सर, कभी आपसे मिल सकते हैं ऑफलाइन में? देखते हैं, लेट्स सी, अगर कहीं मुलाकात हुई। जी सर। अगर कुछ हुआ, अगर सर एक इवेंट तो कभी हम ऑफलाइन भी रख सकते हैं। हाँ, देखते हैं, कभी प्लान हुआ, टाइम निकला तो वी विल प्लान। Shevi, is it how I can pronounce your name? Yes, right. Good evening, sir. Shevi this side. I wanted to ask, sir, you covered about the static part for prelims, but what about current affairs? Is newspaper enough for current affairs या फिर monthly magazine के साथ add on करके पढ़ना चाहिए और न्यूज़पेपर के लिए नोट्स लेने चाहिए या फिर नहीं? आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ो। 1 साल की मंथली मैगजीन्स पढ़ लो, जिस साल अटेम्प्ट दे रहे हो उस साल उससे 12 महीने 15 महीने पहले तक की। और जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, तो उसका एक यूट्यूब पे आधे घंटे का शाम को एनालिसिस आता है किसी भी कोचिंग चैनल का, उसका आधा घंटे का वो देखो। दैट्स मोर देन इट। ओके सर, थैंक यू। विनय तो हो गया। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मुझे 2 क्वेश्चन आपसे पूछना है कि एज ए यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय मतलब कि हमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम तैयारी से करते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं, यानी जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं, तो वो चीज जाननी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और मॉक टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट लगाओ, वही आपको बताएगा। नहीं, जैसे कि लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रही हूँ तो उसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि पढ़ना क्या है मेन चीज? तो वही उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन सही। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर कोचिंग मतलब ज्वाइन करना सफिशिएंट है या नहीं सर? ये तो डिपेंड करता है आप कॉलेज में ग्रेजुएशन के 3 सालों में कितनी चीजें कवर कर लेते हो। अच्छा खासा कवर कर लेते हो तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। काफी चीजें पीछे रह जाती है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लैक कर रही है तो आप ठीक है कोचिंग भी कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। युवराज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग sir. My name is Yuvraj Bishnoi and I am from first year and pursuing BA program from Khalsa College. So my question is, what are the common mistakes that new aspirant or beginner made during his preparation? They read too much. बहुत ज़्यादा सोर्स लेके बैठते हैं। अब पहले स्टडी जो कॉमन सोर्सेज हैं वो तैयार नहीं होते, बट उससे पहले ये पढ़ूँ कोई एक चीज बताएगा, कोई यूट्यूब पे दूसरी चीज बताएगा, तीसरी चीज बताएगा। Make sure you are having minimum number of sources, but you are reading them time and time again. Okay, thanks sir. Allah, if I am not wrong. Actually, Amulya bhaiya. Good evening, sir. My name is Amulya. I am from Andhra Pradesh and Sri Venkateshwara College. I am pursuing BA program first year. So my question was, there are multiple sources. Actually, books are multiple, and there is huge books, readings and everything. And every institute suggesting different books. So
what can we take as a main source, like in this whole books and digital world? If you are in graduation with first year, pick anyone. Anyone, stick to it. Sticking to it is main thing rather than picking. You can pick anyone, but just stick to it. If you have picked one, then just go through it and trust it. Trust is the major factor in it. You have to trust your sources. Okay, sir. Thank you so much. लाइक वे अगर कोई किसी डाउट हो तो हम और ले लेंगे, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू से दैट आवर मेंटर, आवर गाइड एंड द सोर्स ऑफ मोटिवेशन प्रोफेसर जगदीश बिश्नोई सर इज आल्सो हियर. ही इज इन करंटली इन जाकिर हुसैन कॉलेज पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर. सो सर हम आपको भी सुनना चाहेंगे सर. यस सर. नो विष्णु, मैं कुछ भी नहीं शेयर करूंगा. आई थिंक इट वाज इन अ ग्रेट सेशन बाय मिस्टर राजेंद्र बिश्नोई. आई थिंक वेरी वेल आर्टिकुलेटेड एंड विद द हाई एक्सपेक्टेशन द पीपल हैव जॉइंड. आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई है. वही मेरी एक्सपेक्टेशन थी. आई वाज जस्ट ज्वाइनिंग एज एन पार्टिसिपेंट, नॉट एन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो आई थिंक वो मेरे अकॉर्डिंग मैं भी समझना चाहता था कि यूपीएससी प्रोसेस, बिकॉज आई हैव नेवर बीन थ्रू इन यूपीएससी प्रोसेस. एक बार मैंने ट्राई जरूर किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया. तो बट आई थिंक यंग माइंड है, करना चाहते हैं, उनके लिए आई थिंक अच्छा सेशन था. आप इंटरेक्शन कंटिन्यू रखिए. आई थिंक इंटरेक्शन क्रिएट ए मोर आइडिया अमंग द यंग माइंड्स. वो इम्पोर्टेंट है. तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन करोगे उतना ज्यादा आइडियाज आएंगे. So once again, I congratulate the entire team who have created this platform to have a interaction like with the UPSC people, है ना. So you can continue with the Rajendra ji. So if I am having any kind of question, then I will share in the WhatsApp. So yeah, take the more and more question from the audience. If possible, is my humble request that we can arrange one offline interaction in any college or in any institution, so we can meet with few more people who are really willing to be a part of this UPSC process. है ना, वो कर सकते हैं अपन interaction. This is my request. है ना. Thank you Vishnu for recognizing me. I'm joining from the I think from the starting of the session. So thank you. Thank you sir. Thank you very much for joining. Your thought always motivate us to do something new. So sir, I think अभी हम ना चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से कुछ ले सकते हैं. हाँ ठीक है, लेट मी चेक द चैट बॉक्स. First, quality economic survey. If you are writing 26 attend, then we need to focus the budget. हाँ, budget और economic survey 2 साल का करके जाओ. 21 साल का, 21 साल का जो भी अटेम्प्ट ले रहे हो आप. कॉलेज में फाइनल ईयर तक जाते जाते ले लो. बाकी अगर मैनेज हो रहा है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो तो अवॉइड करो. सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है तो आप लास्ट ईयर तक, लास्ट सेमेस्टर तक ज्यादा एडमिशन ले सकते हो. उससे पहले लेना तो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि कॉलेज में भी प्रॉब्लम होता है किसी रोल का अटेंडेंस लगा दी, वो सब अच्छा नहीं रहता. Purchase how can a college students are preparing, so how to manage it. कॉलेज से ये वीकेंड्स पे टाइम दो. कॉलेज में डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहो 1-2 घंटा. वीकेंड्स पे टाइम दो, मिड सेम ब्रेक में टाइम दो, और बस वीकेंड्स को यूटिलाइज करो अच्छे से. Is it worth to take coaching from second year of college online or offline? It's totally up to you if you want to take, whenever you want to take a coaching or not online. से ज़्यादा नहीं पूछते. Sumitra, you want to ask me? Hello sir. I'm Sumitra Chaudhary. Miranda House College. मेरी ग्रेजुएशन चल रही है अभी. मैं बीए कर रही हूँ. वैसे तो आपने सारे क्वेश्चन, सारी यूपीएससी के प्रोसेस बताई दिए कि कैसे कैसे हमें क्या करना है. पर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हमारे पास कोई बैकअप ऑप्शन होना चाहिए? 3 अटेम्प्ट तक तो जरूरत नहीं है. बाकी डिपेंड्स अपॉन आपके फैमिली बैकग्राउंड, घर में सपोर्ट कैसा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कितना टाइम. लड़की हो तो उसका अलग
इश्यूज होते हैं, तो कितना टाइम आपके पास है। और मेरे को ये लग रहा है अगर आपको घर से सपोर्ट है, आपके पास टाइम है, तो आपको 3 अटेम्प्ट तक तो बैकअप का नहीं सोचना चाहिए। 3 अटेम्प्ट आप फुल, उसके बाद में आपको पता चल जाता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो, उसके बाद बैकअप का सोचना चाहिए। 3 अटेम्प्ट तो जस्ट तो टोटल 100% जो आपका सपना है, जो आप करना चाह रहे हो, 3 अटेम्प्ट तक पेपर आप उसको दीजिए। उसके बाद में घर की सिचुएशन कितना कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या इश्यूज होते हैं तैयारी में, प्री मेंस इंटरव्यू किस स्टेज पे हो, क्या क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। बट मेरे को लग रहा है 3 अटेम्प्ट तो आपको खुद को देना चाहिए, आपके खुद के टैलेंट को देना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। Good evening, sir. Myself, Artika from Churu, Rajasthan. So basically, I am from first year in the British College, pursuing BA program, political science. Sir, जैसे कि मेरी कुछ friends है, like I came to Duke और उन्होंने graduation ही कर रहे, वो regular graduation ही कर रहे, उन्होंने अपनी coaching वगैरह ली है अपनी से ही, like पार्टिसिपेट कीजिए, ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए, थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह करंट वगैरह लेकिन वो करते रहिए। लेकिन ग्रेजुएशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, कहीं किसी कर रहे हो, कोई सेशन में जा रहे हो, उन पे ध्यान दीजिए, वो आपको ज्यादा काम आएंगे रेदर देन फर्स्ट ईयर में ताकि कोचिंग में। थैंक यू सो मच। वर यू एक मेरा ही डाउट है कि वर यू एक्टिव इन सोसाइटीज इन कॉलेज टाइम और लाइक यूजर्स स्टिक टू एकेडमिक्स? मेरा ये था कि आई वाज नॉट मेंबर और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनी इश्यूज, बट मेरा ये रहता था जहाँ भी मौका मिलता था, जहाँ मेरे को सूटेबल लगता है, उसमें क्या रिस्पांसिबिलिटी वाले काम में आपको कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो आपकी चॉइस होती है। तो मैं ये चॉइस वाले फंडा में रहता था, जहाँ मन करता था, जो मेरे को अच्छा लगता था वो चीजें कर लेता था, जहाँ जो चीजें अवॉइड करनी होती। So what you inspire you to pursue your career in UPSC, civil servant? Like you also have many different to pursue your career in civil servant. It was like just justifying my own talent or just my own dream. It's like कि हाँ करना था, and एक थोड़ा ये था कि काफी सुन लिया था कि यार ये सब होता है वैसे होता है, इतना टाइम होता है नहीं होता ये रहता है, तो थोड़ा एक वो कसक सी थी कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, चलो करते हैं। और फिर घर से और फैमिली से अच्छा सपोर्ट था, तो इतना कभी ऐसे रहा नहीं कि बहुत जल्दी नौकरी करनी है कुछ करना है, तो थोड़ा वो भी था कि फ्री हैंड था, थोड़ी फ्रीडम थी, तो उसका भी अच्छा सपोर्ट रहा। तो इट्स यूपीएससी इज अबाउट एन इंडिविजुअल ओनली, आपको आप करना चाह रहे हो आप करोगे तो आपसे ही होगा। नोबडी कैन फोर्स यू, नोबडी कैन मोटिवेट यू फॉर लो। तो मोटिवेशन मिलेगी 4 महीने 6 महीने 2 दिन 4 दिन, आपको करना है तो आपको कंटिन्यू लगे रहना है, तो आपको अंदर से ही आएगी। थैंक यू सर। संगम मिश्रा सर सीसेट का सर एनसीईआरटी कैसे पढ़े, सही तरीका क्या है, कितनी बार पढ़े? एनसीईआरटी बेसिक है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बार बार पढ़ते रहो, बाकियों को 1-2 बार रीड कर लो बस, मोर देन इनफ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ा ज्यादा पढ़ो। चुनिला सर ऑप्शनल दो है, हिंदी प्लस हिस्ट्री, को कौन सा अच्छा है कॉलेज में? मेरा सर ये ठीक है, हिंदी ले लो, बढ़िया। I think we can take 1 or 2 questions, then we can wrap up. एक दो कमेंट में था इसमें कि why you wanted to become an IPS or IAS officer, लॉन्ग स्टोरी, कभी व्हाट्सएप में बताएंगे। निहारिका, there is often a perception that IPS officer has to deal with law and order, how it is. ये सब बात की बातें हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, बनने के बाद की बातें बाद में करेंगे। I think we can take 1 question from Sudra, then we can. Sir, I am not. Hello sir, good evening. Myself Shudra Bishnoi and I am from Bikaner district of Rajasthan. And मेरा क्वेश्चन ये है कि कल परसों मैंने एक सेमिनार ज्वाइन किया था जिसमें हमें मैम ने बताया था कि आप लोग जैसे भी कोई करंट अफेयर्स या कुछ पढ़ते हो तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाओ, तो वो कैसे करें? जैसे मैं करंट अफेयर्स वगैरह या जो करंट अफेयर्स का रिसोर्स है, मैं ओनली आईएएस का वो डेली फॉलो करती आ रही हूँ, मे बी 12th से ही करती आ रही हूँ, तो अभी तक मुझे वो लगा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मैं अपना पा रही हूँ या नहीं, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम ओनली है इस वाले जो सजेशन में सॉल्व करके देते हैं वही बहुत है, उतनी कर लेंगे अपना काम हो जाएगा। बाकी चीजें इतनी वो सजेशन में जितनी ज्यादा पढ़ोगे, न्यूज़पेपर वगैरह, थोड़ी बहुत यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज देख लिए, कुछ
न्यूज में देख लिया, कुछ काम कहीं अच्छा हुआ, किसी ने कुछ अच्छा काम किया, वही 4-6 चीजें इधर उधर जो दिमाग में आ गई नहीं आई जितने लोग थी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। वन लेफ्ट मत करना। सो आई जस्ट वांट टू कॉल द Sumitra Chaudhary, the Joint Secretary of Rajasthan Leaders Association, for the formal vote of thanks. थैंक यू विष्णु। सो जैसा कि हमारी मीटिंग समापन की ओर बढ़ रही है, मैं दिल से ऑनरेबल आईपीएस राजेंद्र बिश्नोई सर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने न सिर्फ हमें अपना वैल्यूबल टाइम दिया, बल्कि एस्पिरेंट्स को एक नई प्रेरणा भी दी है कि ये परीक्षा सही स्ट्रेटेजी और हार्डवर्क और पेशेंस के साथ क्रैक की जा सकती है। एंड a big thank you to our wonderful audience for your active part and हमारे सभी कोर टीम मेंबर्स को थैंक यू जिन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज करवाया। एंड वी होप दिस सेशन हैज बीन मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। विद दैट हम आज के सेशन का समापन करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स। थैंक यू। जय हिंद। सर एक क्वेश्चन प्लीज। आपको बता दूंगा, मेरे टेलीग्राम आईडी शेयर कर दूंगा, आप कुछ लोग करिए जब भी मुझे टाइम मिले तो टेलीग्राम आईडी मैं शेयर कर दूंगा। वो टेलीग्राम आईडी आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसके हिसाब से फिर देखेंगे We can wrap up here and like बहुत से डाउट है, बट लाइक कभी फिर इत्मीनान से बैठेंगे तो फिर सर भी होंगे, ऑफलाइन कभी होंगे या ऑनलाइन भी होगा, तो आराम से बैठेंगे। तो थैंक यू एवरीवन गाइस joining. Thank you for the patience and listening me carefully, and I wish all you good luck in your life, whatever you do, wherever you end up, and hope if we can meet somewhere offline or somewhere. Hope to see you all soon. Thank you. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much.